بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قرآن حکیم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بھی اللہ کے شاعر کا احترام کرے یہ تقوی الہی کا باعث ہے. ایک انسان یہ تلاش کرتا ہے کہ شاعر اللہ کہاں ہے. شاعر کا مطلب نشانیاں جس کو دیکھ کے اللہ کی یاد آتی ہو. مسجد شاعر اللہ ہے اس لیے کہ اس کو دیکھ کے اللہ کی یاد آتی ہے. قربانی کا جانور شاعر اللہ ہے اس لیے کہ اس کو دیکھ کے اللہ کی یاد آتی ہے. صفا و مروا شاعر اللہ ہے اس لیے کہ ان کو دیکھ کے اللہ کی یاد آتی ہے. قرآن میں شاعر اللہ کی فہرست نہیں گنائی لیکن کچھ شاعر اللہ کا تذکرہ فرما کے قرآن نے مسلمانوں کے ذہنوں کو متوجہ کیا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ کی یاد آتی چلی جائے اس کا احترام تمہارے لیے ضروری ہے. اب کون کون سی وہ چیزیں ہیں ان چیزوں کو ملاحظہ فرمانا ہے جو اللہ کی یاد کو باقی رکھے. اسلام وہ دین کہ جو اس کائنات کو اس وقت آیا کہ جب عالم انسانیت مر رہا تھا، جس وقت انسانیت کے لبوں پر اس کا قد موجود تھا. ایسے ہنگام میں حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانے کے لیے تشریف لائے کہ دیکھو اگر کوئی انسان دین اسلام سے متمسک ہوتا ہے تو اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. لیکن 23 برس کی حضور کی زندگی ایسی رہی کہ جس میں مشکلات پریشانیاں یہ سب کچھ حضور کو سہنا پڑی، لیکن حضور نے اسلامیت اور انسانیت کے لیے اور سب کچھ کام کیا کہ جو رہتی دنیا تک کے لیے انسانیت کا سر بلند کرتا رہے گا. وہ معاشرہ جو بیٹی کو زندہ درگور کر رہا تھا اس معاشرے میں حضور سرور کائنات اور بیٹی کی تعظیم کر کے بتایا کہ یاد رکھو انسان کو انسان سمجھنا اسلام ہے، انسان کو انسان نہ سمجھنا یہ اسلام نہیں ہے. حضور سرور کائنات کے آگے بڑھ کے ایسی ایسی چیزیں بات فرمائی جس کی بنیاد پر آج پوری کائنات کو اسلام کی حقانیت کا ترس کیا جاتا ہے. لیکن حضور سرور کائنات جو 361 ہجری تک ہم کو پہنچا گئے ہیں، جس کے لیے صحابہ کرام کو خون پسینہ جل کر پہنچایا ہے، وہ قرآن سے اللہ کا دستور کی کتاب موجود ہے. وہ 61 ہجری تک آتے آئے اس منزل تک پہنچ گئی کہ بنام خلیفۃ اللہ، بنام خلیفۃ المسلمین ایک شخص حضور سرور کائنات کی حکومت کے اوپر اقتدار کے اوپر کرتا ہے کہ حضور سرور کائنات کی تعلیمات کو مٹانا شروع کرتا ہے. حضور نے حکومت کو کر دیا تھا اس نے حکومت کو ختم کر دیا. حضور نے مساوات کو کر دیا تھا اس نے مساوات کو ختم کر دیا. حضور نے شراب کو حرام قرار دیا تھا اس نے شراب کو جاری کر دیا. حضور نے ماں اور بہنوں کا احترام سکھایا تھا اس نے ماں اور بہنوں کا احترام ختم کر دیا. اب اس منزل پر چاہتا یہ تھا کہ حسین سے بیعت لے. حسین کون؟ حسین وہ جو رسول کا بیٹا ہے، جو علی کا دلبند ہے، جو فاطمہ کا رخت جگر ہے. حسین نے اس منزل پر عجیب اعلان فرمایا، قیامت تک کے لوگوں کے لیے درس دیا. جب حضور کے اس بیٹے سے سوال کیا گیا کہ تم یزید کی بیعت کرو تو حسین نے طرف کہا مثلی لا یبایع مثلا. یاد رکھو تنہا بات حسین اور یزید کی نہیں، جو بھی مجھ جیسا ہوگا وہ قیامت تک یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. حسین نے اعلان کروا دیا جو مجھ جیسا ہوگا وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. حسین ایک جملہ دیکھیے محسوس فرمائے. اب حسین کون؟ آئیے چلے میں اس مندر کو باہر کرنا چاہتا ہوں. بڑے سلسلے والے ہوتے ہیں اس کیفیت سے. آئیے چلیے دہلی
अल्लाह के हुजूर सरवर कायनात को 2 नवासी अता फरमाए। किस लिए? इसलिए कि हमारे हुजूर सरवर कायनात जहां खत्मुल मुरसलीन है वहां अफजलुल मुरसलीन भी है। तमाम रसूल तमाम नबी हुजूर की ज़ात तक नहीं पहुंच सकते, और जो फजीलत अल्लाह ने तमाम अंबिया को दी है और तमाम फजीलतें अल्लाह ने हुजूर को भी दी है। और अगर कोई फजीलत किसी नबी को मिल जाए हुजूर को न मिले तो इसका मतलब वो नबी आगे बढ़ जाएगा, हुजूर पीछे रह जाएंगे। बहुत से अंबिया को अल्लाह ने शहादत अता फरमाई है। शहादत की 2 किस्में होती हैं। एक शहादत शहादत सिर्री कहलाती है, एक शहादत शहादत जहरी कहलाती है। शहादत सिर्री का मतलब छुपी हुई शहादत, शहादत जहरी का मतलब खुली हुई शहादत। अब अगर अल्लाह के रसूल को शहादत अता फरमाए तो कौन सी शहादत दे? शहादत सिर्री दे तो रसूल शहादत जहरी से महरूम, जहरी दे तो रसूल शहादत सिर्री से महरूम। लिहाजा अल्लाह ने बहुत ही तहरीर के अल्फाज है ये कि अब्दुल अली बहुत ही तहरीर के अल्फाज सिर्फ शहादत किताब पढ़ना फरमाते अल्लाह ने रसूल को 2 नवासे दिए। एक नवासा हसन की शक्ल में, एक नवासा हुसैन की शक्ल में। और अल्लाह ने हुजूर को ये फजीलत शहादत देने के लिए दोनों शहादतों को दोनों नवासों में तकसीम कर दिया। शहादत सिर्री हसन के हिस्से में आई, शहादत जहरी हुसैन के हिस्से में आई। अब इस मंजिल पर आने के बाद बहुत से जहरी लिखते हैं, इसका मतलब ये है कि हसन की शहादत रसूल की शहादत, हुसैन की शहादत रसूल की शहादत। यहां आके उन्होंने क्लोज कर दिया चैप्टर को। लेकिन मैं अब मुसलमान आलम से ये सवाल कर रहा हूं कि अगर हसन की शहादत रसूल की शहादत, हुसैन की शहादत रसूल की शहादत, तो मुझे बताओ हसन का कातिल किसका कातिल, हुसैन का कातिल किसका कातिल? तो अगर इस मंजिल पर समझ सकते हो तो इतना बताओ, क्या रसूल का कातिल काबिले लानत है या नहीं? देखिए हमारा कलमा, हमारा कलमा हमारा कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, तौहीद। हम गवाही देते अल्लाह वहदहु ला शरीक है, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हम गवाही देते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अब्द और अल्लाह के रसूल है। तो जब हम हुजूर सरवर कायनात के उम्मती हैं, हम आपके पछाड़ से सर उठाने के लायक है, तो हम तुम ना कह रहे। हमें सवाल का जवाब दिया जाए, हसन का कातिल किसका कातिल, हुसैन का कातिल किसका कातिल? तो का मतलब ये है कि हसन का कातिल भी रसूल का कातिल, हुसैन का कातिल भी रसूल का कातिल। और फिर अब दुनिया कहती है कि रसूल के जानने की तारीख एक तारीख 12 रबीउल अव्वल, उस दिन यह एहतमाम नहीं होता, यह आज ही एहतमाम नहीं होता। 10 मुहर्रम आती है, आप सब खड़े हो जाते हैं, अलम लेके आते हैं, ताजिया लेके आते हैं, सुलझना लेके आते हैं, मातम करते हुए आते हैं। तो साल में 2 तारीखें हैं, एक वफात रसूल की तारीख, एक शहादत रसूल की तारीख। वफात रसूल की तारीख 12 रबीउल अव्वल, शहादत रसूल की तारीख 10 मुहर्रम। मसला यह है मनाया किसे जाए? याद रखो वफात रसूल का ताल्लुक अपनी जगह था, लेकिन शहादत को इजहार करना इसलिए जरूरी है ताकि इसकी बुनियाद पर रसूल की फजीलत को वाज़ेह किया जा सके। वफात में कोई बुनियादी अंशुर नहीं है, लेकिन शहादत का अंशुर ये मौजूद है कि जब भी एक इंसान रसूल की खूबशाहादत को महसूस करता है तो समझ में आता है कि रसूल ने हमारे लिए क्या कुछ किया है, किस तरह से अंजाम दिया है, क्या क्या खिदमतें
अपने इस मंदिर के ऊपर, इस कैफियत के ऊपर याद रखें, इस बात को मुलाहिजा फरमाएं, इस्लाम जो दीन तौहीद है, इस्लाम जो दीन रिसालत है, जो कयामत तक के लोगों को समझाने के लिए आया था, संसार में मालूम क्या हुआ? सबसे कदीम तारीख का नाम है तारीख जबरी, अल-अखबार तबकात के साथ जाके हम तीनों किताबों पढ़े। यजीद तख्त नशीन होते ही सबसे पहला खत लिखता है, और खत लिख के कहता है, वलीद को खत लिखता, अपने गवर्नर को खत लिखता था कि 4 लोगों से बैत ले लो। 4 लोग, हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्लाह इब्ने उमर, अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर, अब्दुल्लाह इब्ने अबी बकर, 4 लोगों से बैत ले लो। यह खत बता रहा है कि पूरे आलम इस्लाम से बैत कर ली, 4 ने नहीं की। और लुत्फ की बात यह है कि 3 बैत में तन्हा हुसैन खड़े हुए, ये कहते हुए कि जुमला किया, मिसली ला युबायिउ मिसला, मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। कहना क्या चाहता हूं, इस्लाम एक करिए का नाम नहीं था, इस्लाम एक सूबे का नाम नहीं था। इधर हिंदुस्तान में सिंध की सरहद, आधा चीन, पूरा ईरान, पूरा अफ्रीका, मिस्र, अलजायर, ट्यूनिस, आधी से ज्यादा दुनिया में इस्लाम की हुकूमत थी। कितने लोग रहते थे? इतने लोगों में से 4 थे जिन्होंने बैत नहीं की थी। पूरा आलम इस्लाम यजीद को खलीफा नहीं माना था, तो 4 में, और 4 में 3 हिम्मत नहीं कर पाए, एक हिम्मत की। क्या कहते हुए कि मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। मैं नतीजा देने जा रहा हूं, नतीजा में वो मिलेगा अपने दायरे के अंदर। 3 बैत तन्हा हुसैन खड़े हुए, मैं अली का नाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या क्या सिफतें थी यजीद के अंदर? यजीद शराब पीता था, यजीद ज़िना करता था, यजीद तमाम अहकामात इस्लामिया का मजाक उड़ाता था। इतना सब काम करने के बाद रसूल की मसरत पर यजीद और मुसलमान बर्दाश्त कर रहे हैं। एक सवाल, और सवाल का जवाब देते हुए गुफ्तगू को आपके हवाले खत्म कर रहा हूं मैं। किसी मस्जिद का छोटा सा पेश नमाज, किसी आम सी मस्जिद का पेश नमाज, अगर आज सिर्फ शराब पी के मस्जिद में आ जाए, 73 फिरके आलम इस्लाम के, कोई बर्दाश्त करेगा कि उसकी मस्जिद का एक छोटा सा पेश नमाज शराब पी के आ जाए? कोई है जवाब देने वाला? एक छोटी सी मस्जिद का पेश नमाज, पेश इमाम शराब पी के आ जाए, कोई बर्दाश्त नहीं करता। उस वक्त खलीफा को बर्दाश्त करना मुसलमान, ये गैरत आई कहां से, ये हमीयत आई कहां से, ये इखलास कहां से आए? सलाम करो रसूल के बेटे हुसैन को कि हुसैन ने खड़े होके यजीद की मुखालिफत करके अपना घरबार को लुटा दिया, लेकिन मुसलमानों को इतनी
बेजारी इतना करने वाले हुसैन, और अपना गुफ्तगू नामुकम्मल हो जाएगी अगर मैं बात ऐसा करूं। हुसैन ने तो सर कटा दिया, लेकिन मुझे बताएं एक दूसरी मंजिल, अगर कोई बड़ा इंसान आज के जमाने में बुरा काम करने लगे, छोटा इंसान भी टोक देता है, बड़ा पैसे वाला जुर्म कर रहा है, टोकने पर खड़े हो जाते हैं। कल कोई नहीं टोक रहा था, किसने सहारा दिया? कौन था जो खैरत इस्लामी को बढ़ा रहा था? दो शख्सियतें, एक रसूल का बेटा हुसैन, एक रसूल की बेटी ज़ैनब। हुसैन ने सरोतन में जुदाई करवा के यजीद की खिलाफत को कबूल न करके मुसलमानों को अहमियत दी कि तुम किसी भी एक मंजिल पर कबूल न करना, और ज़ैनब ने यजीद की आंखों में आंखें डाल के बता दिया कि बुराई करने वाला कोई हो जिसके दिल में हुसैन नहीं रहेगा, वो खिलाफत का मरहला हो या इमामत का या हुकूमत का मरहला हो या लश्कर का, न चलेगा आज रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये तमाम मुसलमान जमा है, इसलिए जमा है ताकि आलम इस्लामी को मुतवज्जे कर दे, खबरदार अपनी शरीयत की हिफाजत करो, शरीयत के मुकाबले पर कोई आ जाए उसके वजूद को बर्दाश्त न करो।